Hello judicial aspirants, I am Pallavi Rai. I am here to discuss with you the Transfer of Property Act Part 1, which is preliminary part. In earlier sessions we had already discussed about the object and scope of this act. Why this act we needed, why it came into existence. These all the factors we have already discussed in earlier sessions. So now we are going to discuss now the very first section, the section 1, which has three main elements: the short title, commencement and extent of this act. The short title of this act is the Transfer of Property Act 1882. Yani this act, the title of this act is Transfer of Property Act 1882. The second element is commencement. It shall come into force on the first day of July 1882. यानी commencement कब हुआ इस एक्ट का? 1 जुलाई 1882 को ये एग्जिस्टेंस में आया है. वैसे ये एक्ट था जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 4th एक्ट था 1882 का, पर ये 1 जुलाई 1882 को इसका इन्फोर्समेंट हुआ. ये फर्स्ट टाइम इन्फोर्स हुआ. So the enforcement is 1st July 1882. Third element is about extent, the territorial jurisdiction. From the line of the bare act, we can read it extend in the first instance to the whole of India except the territories which immediately before the 1st November 1956, which were comprised in Part B state or Bombay, Punjab and Delhi. So the first word, territorial jurisdiction. What does territorial jurisdiction here means? The territorial jurisdiction means the territory or the places in which this act is applicable. So the territorial jurisdiction of Transfer of Property Act 1882 extend to the whole of India except Punjab. But this act was not enforced throughout the country at one stretch. It was made applicable in different part of country from time to time at a different stage. Means कि territorial jurisdiction वो होता है जो जिस जगह पे, जिस टेरिटरी पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, वही इसका टेरिटोरियल जुडिक्शन होता है. सो ये एक्ट जो है, जो 1882 का जो ये एक्ट है, जो 1 जुलाई 1882 को एग्जिस्टेंस में आया, कमेंस हुआ, इसका इन्फोर्समेंट हुआ, ये एक बारगी इसका इम्प्लीकेशन नहीं हुआ था. ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पार्ट को इम्प्लाई किया गया था. सो जो फर्स्ट टाइम ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को, ये एक्सटेंड हुआ था पूरे ब्रिटिश इंडिया को. एट दैट टाइम वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. सो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया except 3 territories: Burma, Bombay, Punjab and Punjab. During the British rule, as we know, the term British India means all the territory which were at that time in the dominion of His Majesty and were governed through the Governor of India or a Governor General or any other officer of Governor General in Council. So at the time of commencement in 1882, the Transfer of Property Act was enforceable in all the territories of India. In all the territories of British India except Burma, Bombay and Punjab, जो कि उस टाइम का पेप्स हुआ करता था. फिर जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको एक पार दे दिया गया कि आप इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न को या किसी भी पार्ट को आप उसके रिस्पेक्टिव एरिया में नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल गैजेट में आप नोटिफिकेशन देके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये एक्ट जो है लोकल गवर्नमेंट को पार देने के फर्दरेंस में, ये एक्ट जो है बॉम्बे में सबसे पहले एक्सटेंड हुआ 1893 में, 1 जनवरी 1893 में. और फिर 1 जनवरी 1915 में प्रोविंस ऑफ सिंध में ये एक्सटेंड हुआ और देन बर्मा में ये एप्लीकेबल हुआ 22 दिसंबर 1924 में. और ये इस तरह से एक्ट जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट में इफ़ेक्ट में आया.
When India got independence in 1947, the native state were either merged in or their jurisdiction was handed over to the provincial governments. तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस को एक्सटेंड कर दिया और दूसरे लॉ को जो ब्रिटिश इंडिया में उस समय इन्फोर्स थे उनको एक्सटेंड कर दिया। और उस समय ये वो एक एक्ट के तहत दिया गया था जो एक्स्ट्रा प्रोविंशियल जुडिक्शन एक्ट 1947 के तहत दिया गया। In 1950, when India became republic, the former state were formally merged in it and were called Part B state. जो former state थे जो हमारे पार्ट नहीं थे, तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत सारी रियासतें हमारे में मर्ज हुई, जिनको हमारे देश ने अपनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश दो भागों में बटा। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस तरह से हमारे देश का बंटवारा हुआ। हमारे देश का बंटवारा हुआ तो कुछ रियासतें हमारे देश में शामिल हुई, कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई। तो जो पार्ट बी स्टेट के नाम से जाना गया, जो हमारे देश में 1950 में मर्ज हुई, जब हमारे देश रिपब्लिक बना। द मर्ज स्टेट लॉ एक्ट 1950 and the Part B State Act 1951 reimposed all the existing law. 1950 Merged State Law Act 1950 and the Part B State Laws Act 1951 reimposed all the existing law, including the Transfer of Property Act enforced in other part of country and also to the Part B State. Since then, the Transfer of Property Act 1882 has been applicable to these merged state as well. तो जो हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी एप्लीकेबल हो गया इन मर्ज स्टेट में। जो फॉर्मर स्टेट्स थे जो पार्ट बी में हमारे इंक्लूड हुए थे, वो वहाँ भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो गया। तो हमने क्या किया, 1956 में हमने इसका अमेंडमेंट किया। जो पार्ट बी स्टेट्स थे, एक्सेप्ट पार्ट बी स्टेट्स करके जो लाइन थी, उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्सेप्ट द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956। यानी एक्ट ये होल इंडिया में एप्लीकेबल तो होगा, बट एक्सेप्ट the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised in Part B state or in the state of Bombay, Punjab and Delhi. So there is a word or means या तो पार्ट बी स्टेट में हो या दिल्ली, बॉम्बे या पंजाब में हो, तो उन स्टेट के अलावा ये पूरे होल इंडिया में लागू होगा। यानी 1 नवंबर 1956 के पहले जो पार्ट बी स्टेट में थे या कि जो बॉम्बे, पंजाब या दिल्ली के पार्ट हो, उन जगहों के अलावा ये पूरे देश में लागू होता है। तो इसके बाद ये जो है चेंज इसलिए भी ज़रूरी था कि जो फॉर्मर नेटिव स्टेट थे, जो पार्ट बी स्टेट कहलाते थे, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी 1951 से एप्लीकेबल हो गई थी। फिर दिल्ली में इसको दिल्ली में नोटिफिकेशन ले आया गया और ये इफ़ेक्ट में आया दिसंबर 1962 के 2 से। उसके बाद इस एक्ट धीरे धीरे करके ये सभी जगहों पे एप्लीकेबल हो गया एक्सेप्ट पंजाब के, जो कि पंजाब में अभी भी ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। बट थ्रू द रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस के रूल से हम क्या करते हैं, तो जो रूल है इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसेंस का, वो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ जो पंजाब में रेगुलेट होता है, वो इन्हीं रूल के थ्रू रेगुलेट होता है। तो वैसे तो इस स्टेट में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, पर कुछ जो एक्ट के पार्ट्स हैं उनको इस रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस के थ्रू हम अप्लाई कर देते हैं। सो हमने पढ़ा कि ये एक्ट जो है किस किस जगहों पे एप्लीकेबल है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया और कैसे कैसे धीरे धीरे ये अप्लाई होता गया। इसका टेरिटोरियल जुडिक्शन का हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये कैसे कैसे स्टेट्स इसमें जुड़ते गए, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता गया। फिर हमने पढ़ा उसके बाद जहाँ भी ये अप्लाई नहीं था वहाँ
अब प्रेजेंट एक्ट में हमने स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज़ कर दिया है कि जहाँ पर भी ये अप्लाई नहीं है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज़ है कि वो कभी भी किसी भी पार्ट को या तो पूरे पार्ट को जब चाहे तब अप्लाई कर सकती है। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ताकि वो इसका इम्प्लीकेशन किसी भी जगह पे इसको इम्प्लाई कर सके, इसको एक्सटेंड कर सके। बट कुछ सेक्शंस जैसे कि हमने देखा है कि सेक्शन 54 के पैराग्राफ 2-3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 और 123 को जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता, इनको एग्जेम्पशन मिला है। कैसे? लेट्स सी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेक्शन 54 पार्ट 2-3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 एंड 123 रिलेट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, मॉर्गेज, लीज एंड गिफ्ट। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो प्रोविज़न है वो इन ट्रांजैक्शन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में प्रोविज़न दे दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में जैसा कि हमने कहा कि प्रोविज़न दे दिया गया है, सो जो ये इन सारे ट्रांजैक्शन के रजिस्ट्रेशन होंगे वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ज़रूरी नहीं, आवश्यक नहीं होंगे इनको रजिस्टर करना। और जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इन्फोर्स में है वहाँ ऐसे ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ही रजिस्टर होंगे और ऐसे ट्रांजैक्शन जो रजिस्टर और इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के वो प्रोविजंस वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे यही बात समझने वाली है कि जहाँ पर भी ये सेक्शन का विस्तार जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट है वहाँ पे इन सेक्शंस का विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ऑलरेडी इससे रिलेटेड प्रोविज़न दे दिया गया है। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट के वो प्रोविज़न ही एप्लीकेबल होंगे, ना कि ये पार्ट होगा। तो इसमें एग्जेम्पशन यही है कि जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेल, लीज और मॉर्गेज और गिफ्ट के, वो पार्ट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के इम्प्लीकेशन होने के बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ये प्रोविज़न वहाँ पे लागू नहीं होंगे, जबकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविज़न्स ही लागू होंगे। तो यहाँ पे हम पूरी बात को समराइज़ करते हैं। जैसा कि हमने सेक्शन फर्स्ट में पढ़ा कि सेक्शन फर्स्ट में 3 पार्ट हैं। शॉर्ट टाइटल, जो कि टाइटल मीन्स कि इस एक्ट का नाम क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, देन कमेंसमेंट 1 जुलाई 1882 एंड देन एक्सटेंशन यानी टेरिटोरियल जुडिक्शन।